Hello students. In previous video we have studied one of the type of audit, and that is internal audit. Today we are going to discuss the other type of audit, and that is statutory audit. The term statutory audit itself signifies that it is an audit which is conducted or carried out as per the requirement of particular statute or act. The term statute means act or enactments created by the legislatures of the India or state government. So the statutory is an audit which is conducted as per the provisions of the particular statute. See what happens, there are various organizations which are registered under one or other act, like companies are registered under Companies Act. There is public trust which are registered under Bombay Public Trust Act, which is a state law. Then again there are cooperative societies which are registered under Cooperative Societies Act. So when these organizations are registered under these acts, then they have to perform, these organizations have to perform their functions, they have to work under the legal frame of these statutes. Their financial and other activities are governed by these statutes, and so in order to ensure that whether these activities are performed within this statutory framework or not, so in order to ensure and in order to confirm this statutory audit is conducted. So basically, statutory audit is an audit which is carried out as per the requirement of Companies Act, as per the requirement of Public Trust Act, as per the requirement of Cooperative Societies Act and other acts. So if one has to give the example of statutory audit, we can say company audit, audit of trust, audit of other institutions like societies are the statutory audit. Now moving forward towards the features and principles of statutory audit, one can say that statutory audit is an audit which is compulsory in case of entities incorporated under one or other statute such as Companies Act and other act. So when the organizations are registered under particular act, then that organization has to follow the provisions, and that is statutory provisions of those act and statute. And so the audit provided in the provision of that statute is compulsory in nature. सो जब भी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर स्टैट्यूट के थ्रू या पर्टिकुलर लॉ के अंडर में एक्ट के अंतर्गत करता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि अगर उस एक्ट के अंतर्गत ऑडिट करना कंपलसरी कहा गया है, तो उसको वह ऑडिट करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है. सो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ कंपलसरी इन नेचर. Second one is the statutory audit is always a complete audit. स्टैट्यूटरी ऑडिट को कंप्लीट ऑडिट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कंपलसरी इन नेचर है, तो डिटेल स्टडी होती है सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल वेरिफिकेशन होती है, स्क्रूटिनी होती है. सो उस हिसाब से इसको कंप्लीट ऑडिट कहा गया है. द स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज डिसाइडेड बाय द गवर्निंग स्टैट्यूट एंड इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. ये जो ऑडिट है इसका स्कोप पर्टिकुलर वो स्टैट्यूट डिसाइड करता है, उस स्टैट्यूट के अंतर्गत इसका स्कोप डिफाइन होता है. सो जो भी कोई अथॉरिटी जब ऑडिटर को अपॉइंट करता है, तो वह यह स्कोप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, शॉर्ट नहीं कर सकता.
Statutory audit can be carried out only by those who are qualified for appointment as per the provision of Companies Act 2013 and other regulatory acts. For example, the practicing chartered accountants. तो yes, statutory audit सिर्फ और सिर्फ practicing chartered accountant ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी और कोई इसके लिए qualified नहीं है to be appointed as a auditor for statutory audit. Next one is rights and duties, responsibilities and liabilities of auditor are governed by the provision of concerned statute. तो जैसे कंपनी का ऑडिट अगर करना है तो कंपनीज एक्ट 2013 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर की सारे के सारे राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ एक्सेट्रा की प्रोविजंस दी गई हैं. So one has to perform accordingly. That auditor has to work according to the responsibilities, duties, liabilities provided under the Companies Act. Statutory audit is concerned with the legality and validity of transaction of the business. स्टैट्यूटरी ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट ही है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसकी वैधता जानने के लिए ही स्टैट्यूटरी ऑडिट किए जाते हैं. His audit work is based on financial statement prepared by the business. तो बेसिकली जो स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही किया जाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद प्रिपेयर करती है और ऑडिटर उसको वेरीफाई करता है, उसको स्क्रूटिनाइज करता है. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज़ टू एड्रेस द ऑडिट रिपोर्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी which is the members and shareholders of the organization. ऑडिट होने के बाद में ऑडिटर अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपने ओपिनियन, व्यूज़ वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद प्रोवाइड करता है, खुद प्रिपेयर करता है. और फिर जब ऑडिट रिपोर्ट में अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ वो रिकॉर्ड कर देता है, उसके बाद में उस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में उसको शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करना होता है. दैट मीन्स उनके सामने वह रीड आउट करेगा और एक्सप्लेन करेगा सारी चीज़ें रिगार्डिंग जो उसने कमेंट्स डाले हैं ऑडिट रिपोर्ट में. नेक्स्ट वन इज़ द ऑडिट. The statutory audit involves expression of opinion of auditor on the truth and fairness of the financial results and financial position depicted by the financial statements audited by him. सो बेसिकली यहाँ पर जैसे हमने पहले भी ऑडिट का मीनिंग देखा है, तो लास्ट में ऑडिटर का मेन काम ही ये होता है और ऑडिट ही इस पर्पज़ से किया जाता है कि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चीज़ें शो करता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू सामने आती हैं, उसके बारे में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है उस ऑडिट रिपोर्ट में. That views should be regarding the truth and fairness of the financial results. तो यहाँ पर फीचर्स हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट के कंप्लीट होते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट. So first object is to ensure that the transactions of the concerned organization are within the framework of the laws governing the organization. तो जो लॉ उस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है, जिसके अंतर्गत वह ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क दी गई है, सारे ट्रांजैक्शंस उस ऑर्गेनाइजेशन के वो लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत हुए हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है. To safeguard the financial interest of the shareholder or members of the organization. Yes, no doubt shareholders are called as the owner of the company, but basically shareholders invest their savings, the money earned by them in the business organization. So in order to safeguard their financial interest, statutory audit is conducted. To safeguard the interest of other parties like financiers, creditors, investors and workers, etc. So again, statutory audit is not only conducted to safeguard the financial interest of shareholder, but it is also conducted to protect the interest of creditors, investors, workers who are in any way financially related to
that business organization. Next one is to ensure supply of authenticate data about the functioning and financial matters of the organization to the controlling authorities like registrar of the companies or societies or trust और अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली कंपनी हो चाहे सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो, इनको कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है एंड दैट अथॉरिटी इज़ कॉल्ड एज रजिस्ट्रार. सो इस रजिस्ट्रार के पास में ये ऑर्गेनाइजेशंस की करेक्ट ऑथेंटिकेट डेटा प्रोवाइड करने के इंटेंशन से भी ये स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है. इस डेटा के थ्रू कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स और कंपनी का फंक्शनिंग कैसे चल रहा है, इसकी ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन इस रजिस्ट्रार के पास में ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड ऑडिटेड रिपोर्ट के थ्रू, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू पहुंचती हैं. सो ये पहुंचाने की भी इंटेंशन से स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है टू असिस्ट इन मेकिंग डिसीजंस ऑफ अमालगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन. सो बेसिकली कंपनीज़ को अगर अमालगमेट होना है, मर्ज करना है या टेक ओवर करना है या फिर से रिकंस्ट्रक्ट होना है, तो ये सारी चीज़ों के डिसीजन के लिए भी स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है सो दैट उनकी फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्ट पता चले. सो these are the basic these are the basic objectives of statutory audit. नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स द एडवांटेजेस. तो जैसे कि हमने फीचर्स देखे हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, उससे ये क्लियर हो जाता है कि बहुत सारे एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस है स्टैट्यूटरी ऑडिट के. सो स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ हिज शेयर होल्डर और मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस ही सेफगार्ड्स देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट. तो नो डाउट जैसे कि बताया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्चुअली एक ट्रस्टी जैसा होता है कि जो शेयर होल्डर्स का, कंपनी के जो मेंबर्स है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और सेफगार्ड करता है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टैट्यूटरी ऑडिट का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है. कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ को जैसे कि रजिस्ट्रार है, उनको ऑथेंटिकेट डेटा भी प्रोवाइड होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के वजह से. तो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं उसमें से ही हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने सारे एडवांटेजेस है स्टैट्यूटरी ऑडिट के. सो यहाँ पे आज का टॉपिक हम कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम आगे का टॉपिक देखेंगे. थैंक यू.